सो फीडिंग इशू बहुत ही क्लोज है, क्योंकि मैंने फेस किया है बहुत बार। कभी कभी ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है ना। एक्चुअली। एक बच्चा मुझे याद है कि पूरे वीक एक स्ट्रेच में कुछ नहीं खा रहा था, और जब डाउन द लाइन गए तो पता चला कुछ सेंसिटिविटी थी स्मेल से या कुछ। और एक केस है जिसमें बच्चा सिर्फ लिक्विड ले रहा था, तो उसका तो कोई पैथोलॉजिकल रीजन था, कुछ फूड पाइप राइट। में कुछ इन्फ्लामेशन था। तो कभी कभी तो बहुत ही चैलेंजिंग है। ट्रू। और आई थिंक पेरेंट्स की एंजाइटीज वरी भी इतने हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो है ही हम्म। बच्चा खा अच्छे से पाए, न्यूट्रिशन मेंटेन हो। तो हम्म। एक्चुअली इवन जब आप डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स टॉक अबाउट फीडिंग इश्यूज, तो मुझे लगा इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो एज अ यस। प्रोफेशनल आल्सो। और मतलब क्लिनिकली हम देखते ही रहते हैं कि ये चीजें में पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो कई बार होता है बड़ी छोटी सी टिप्स भी शायद उन्हें वर्क कर जाए और हेल्प कर पाए। बहुत डिफिकल्ट है ना, आप किसी को फोर्सफुली तो खिला नहीं सकते, इवन कि 1 ईयर ओल्ड को भी नहीं खिला सकते। बिल्कुल। इट्स फूड डिफिकल्ट। रिफ्यूजर्स तो मुझे लगता है वो फोर्सफुल फीड तो नहीं कराना है, हम कितनी बार इस बात को एक्सप्लेन हाँ। करते हैं इवन साइंटिफिकली भी। या कभी कभी पेरेंट पर्सपेक्टिव से सोचे तो उनको जाना होता है ऑफिस, क्या करें वो। या टाइम सो कंस्ट्रेन तो है ही एक बहुत बड़ा फैक्टर। सो फीडिंग, खाना लेना मुंह में डालना निगलना ये नहीं है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। यस, मच मोर। और इसमें लेयर बाय लेयर सेंसेस इंटीग्रेट होते हैं इसमें, ट्रू। राइट। कितने सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं। या तो आई ऑलवेज से दैट फीडिंग डजंट स्टार्ट फ्रॉम माउथ. यस 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 Yeah, so because many times we feel it's just like you're chewing the food and just swallowing, and that's the feeding is. But यस। I feel it is much more than that. So many components are involved: neuromotor, sensory motor things. Yeah. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीडिंग, अगर ले मैन को समझना हो तो फीडिंग है क्या। Hmm. So जब मैं feeding की बात करूँ तो the process when it starts, like when you are going to, even like I have kept a lot of food. Generally, this is my almost 7:30 or 7:15 is my dinner time. So यस I thought, okay, let me keep the snack only with me. So even when यस। I'm talking about feeding, even when you are accepting the food and taking it to the mouth, okay, the process of taking to the mouth, you are feeling the food then in the mouth. How are you manipulating? You are chewing. If it's hard food, you are going to make it a bolus so that you can swallow it, right? So So the bolus whole is process, bolus is bolus. the bolus is the food and mixed with saliva or something, right? Yes, right. Yes. So if I'm taking liquid thing, जैसे छोटे बच्चे हैं who are on liquid diet or Mm, semi solids, that time the food is already mm, in a form. Even if you're giving a milk or a smoothie, right? So that time yes. child doesn't have to work a lot on oromotor structures much, but yes, he has to hold the food in mouth and then Yes. swallow. Till that time, it's going to our obviously to the food pipe and it's going to the stomach. So that whole process of processing the food till it reaches Yes. to our nutrition, that whole is feeding. Yeah. Great. My second question would be, uh, if child is hungry, will they automatically eat? ग्रैंडफादर बोल ग्रैंडफादर बोलते हैं ना, रहने दो भूखा खा लेगा। Ah, okay. So this is यस। something is very, very important. And specifically, I will say not only for any other child, even children who have some sensory processing issues or children with autism. So हमें यस समझने में भूख पता कैसे चलती है? As we यस talk about all the sensations, हमारे viscerals में stomach हो गया, throat हो गया, internal organs में we have sensations. यस Hunger यस। pangs बोलते हैं ना, हाँ हाँ। right? When you are hungry, you start feeling ki you need to eat, right? यस So यस। that is how you are feeling hungry. Thirsty feel करते हो तो आपका गला सूखने लगता है, and these all sensory systems take that information जब आपका stomach खाली हो गया है या it needs food, and it gives a signal to your brain, and then you are feeling the hunger, which are called यस interoceptors, यस right? यस। Now, many times, children with autism or sensory issues may even process it very differently. ओके। अब बच्चे को भूख फील ही नहीं हो रही है, राइट? तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि दे आर एनीवेज परसीविंग द हंगर इन अ डिफरेंट वे,
Okay. कई बार they don't know if they are hungry or even the sensory systems are not giving information. दूसरा ये भी हो सकता है कि मे बी बच्चे की वो स्किल्स ही ना हो कि he can manage the food. If I do not have any skill, right? Yes, yes. That could be sensory skill or motor skill. तब भी बच्चा नहीं खा पाएगा. तो मैं जनरली हम बोलते हैं कि फीडिंग इश्यूज, हमने बोला एक बच्चा खाना नहीं खा रहा है, भूखा है, उसे खाने दो, या ये बिहेवियर है. In my checklist, the last thing will be behavior. Last. Yes. It's very interesting, right? हम सबसे पहले हम सोचते हैं बिहेवियर है. और मैं बोलती हूँ कि पहले सब चेक कर लो. सेंसिंग तो नहीं है, चूइंग इश्यूज तो नहीं है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं है साथ, कि किसी ने फोर्स तो नहीं किया, या किसी ने फोर्सफुली खिलाया हो. वंस ही हैड अ नेगेटिव एपिसोड, बच्चे ने वॉमिट कर दिया था और उसके बाद वो दो आई सी दिस फूड, मैंने देखा मुझे उल्टी हो गई, राइट, या ध्यान कर दिया. तो मैं तो बोलती हूँ अपने इवैल्यूएशन में मैं फीडिंग में सबसे आखिरी में बिहेवियर सोचती हूँ. और नॉर्मली हम सबसे पहले सोचते हैं सबसे पहले ये टेंट्रम दिखा रहा है बच्चा. बिल्कुल. तो अगर बच्चे को हम भूखा छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली एंजाइटी, डिस्ट्रेस, रेगुलेशन और अफेक्ट होगा. तो ये तो बिल्कुल ही एज्यूम ही नहीं करना भूखा रहने दो तो खा ही लेगा, बिल्कुल भी नहीं. एक क्वेश्चन आया है, दे फील हंगर एंड थर्स्ट बट don't know how to express. Yes. So many times even it could be communication issue. Yes. बच्चा बोल नहीं पा रहा है कि मुझे खाना दे दो या बिस्किट दे दो. So sometimes children with autism, they will give non-verbal cues. They may pull you and take you to the kitchen, or they bring the box to you of biscuits, right? Yes. So that is one sign where child is indicating that child needs the food. But as I said many times, children may not feel it's their hunger, right? Interoceptors have not developed. In that, definitely we have to see their feeding schedule also. आपको पता चला कि ब्रेकफास्ट के बाद अब 2 घंटे या 3 घंटे में बच्चे ने कुछ नहीं खाया है, एंड नाउ चाइल्ड हैज अ मेल्टडाउन और क्राइंग, फोकस नहीं कर पा रहा है. अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है बच्चा, बिकॉज इट्स अ डिस्कम्फर्ट फॉर द चाइल्ड. But child doesn't know if you give him some snack and he feels better. तो ये कई बार हो सकता है with communication issues, and other child doesn't even know cause and effect. Okay, मुझे खराब तो लग रहा है, discomfort लग रहा है, but I don't know it's due to hunger. Madhu is asking, I think the same answer होगा. मैम, यदि बच्चा खाना बहुत जल्दी खाता है. Okay. हाँ, so there are few children who want to eat very fast. तो उसमें 2-3 तरह की चीजें हैं. एक तो ये कि बच्चा खाने को अच्छे से च्यू ही नहीं कर रहा है, right? Yes, Even हम normally भी बोलते हैं ना कि one food how many times we should be chewing, right? Yes. One, it could be कि child is eating the food fast because he's not chewing it properly. ये भी हो सकता है there are few children who like to stuff the mouth. बहुत ज्यादा मुंह में भरना चाहते हैं, ठीक है. That also could be sometimes due to sensory perception, because child doesn't feel the food much in the mouth. तो वो भी हो सकता है. I think it's some Sankalp Center India. Ma'am, how can we properly evaluate which state? Sorry, which state? Yes. Okay, yeah. So I know this is a very, very detailed question. Yes. मैं जो करती हूँ, आई जनरली टेक द फीडिंग हिस्ट्री. हर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, जैसे एक डेवलपमेंट एज होती है, सिमिलरली देयर इज अ feeding detail also as per age. At 1 year, what all do you expect from a child? What do you expect at 3 years, right? How much motor control or sensory maturity you are expecting. So first, I take the feeding history from the parents. Okay, what all child is eating, what child cannot eat, and there are questions related to sensitivities which I would ask parents. Okay, so that is the very first important thing. Dusra, like I would say, like from online things, and after COVID we became so comfortable with these videos. I tell parents कि मुझे ना एक feeding का video भी भेज दो. Maybe 40 to 50 seconds, or even 1 minute of video when you are feeding the child 5 spoon only, right? या चपाती दे रहे हो. Then I will be observing also how is child accepting the food.
मान लो मुझे हार्ड फूड खाना है, एम आई बाइटिंग फर्स्ट एंड देन मूविंग द फूड टू द साइड? So whole oral motor evaluation, I'm going to check. I'm going to Okay. check how's the lip closure, how child is chewing, how So child is accepting it should be close up video, right? Yes. Yeah. Yeah. So I Yeah. take quite close. I tell parents कि आप एक वीडियो लो, उसमें अगर बच्चा सेल्फ फीड कर रहा है, that also helps us to see. स्पून से अगर कुछ ले रहा है, Hmm. I will see कि लिप क्लोजर हुआ कि नहीं, या Hmm. मुझे पोर करना पड़ा. So I would say yes, observation, but at the same time we will do oral sensory and oral motor evaluation. So that does not have to do only with food. We generally use lot of sensory tools also, which I can take inside the mouth. Like this is like oral swab. I think Yes. Simon, we love this to use in our feeding sessions, है ना? Uh, Generally we evaluate oral sensory systems को. जैसे हम सारे sensory systems को evaluate करते हैं, we have to check it also. yes. So there is Yes. a good criteria to check that कि क्या Yes. बच्चे को texture से sensitivity तो नहीं है, Mm-hmm. gag reflex hypersensitive तो नहीं है, and we are also going to check motor components about jaw movement कैसे हैं, chewy tubes we use. So I would say whole oral motor evaluation is very very important along with sensory. So yeah, so sometimes it takes 2 to 3 sessions for So us to evaluate. we are getting lots of questions. Yeah. Bhavani said autism child hate to touch wet food. I think it's some tactile issue. Yes. So we always eat dry foods. What to do? Yeah. So, Mama, what I would tell if you're a mama or a therapist, I always say about the food exploration. Okay. Yeah. And you can go graded, gradual way with the child. So, I am not going to start with the very messy thing initially. If a child is tactile sensitive, there is more sensitivity. I may start with some dry textures and how child is playing with that. You Yes. can use some food like banana. I love that. Why? क्योंकि banana को जब आप peel करते हो तो it's very mushy. Or boiled potato, right? You tell the child to peel with you. Make it a game with you. Okay. अगर बच्चा play में peel नहीं भी कर रहा है, you can use an butter knife and tell him to chop. Let's help mama. Or just pick this up and put it. Right? हम papaya का juice बना रहे हैं. Let's help mama. So you are actually helping the child to explore those textures. And अगर smell से sensitivity होगा, वो भी better होगी. So are you Yeah. suggesting कि sensory profiling कर लेनी चाहिए पहले? Yes, I feel so. मतलब sensory profiling एक तो हो गया हमने किया ही, but definitely you could always check that. But कई बार मैंने क्या देखा है ना, क्या होता है हमारे बच्चे who are on therapies ना, so when we are giving them Wilbarger protocol or we are giving them texture mats, sand, they are okay because they have adapted to that. But they still have not adapted to food. Okay. So if a child has tactile sensitivity, definitely you are going to use the whole sensory profiling and tactile modulation techniques. But if feeding issue है, so make sure you are adding food items also in that tactile plan. So in evaluation we should add some food item to evaluate the child. Definitely. मुझे लगता है उससे हमें बहुत क्लैरिटी आता है. और इवन अगर वो फूड मुझे प्लान भी करना है, मान लो बनाना, तो पहले ही दिन उसको बनाना मुझे मुंह में तो देना नहीं है. तो व्हाट आई वुड डू, हम थेरापुटी की बजाय या सैंड की बजाय लेट्स प्ले विद बनाना टुडे. Ketchups. I am okay with that because my target is food also. So a positive relationship with food, child. So anybody किसी के बच्चे को कोई इश्यूज है फीडिंग है तो मैम से कंसल्ट करो. She is the best person. She is best in the business. Oh, I would love to. And you don't know, मतलब जब हमारे बच्चे खाते हैं ना, I remember one of the family I was working with and बहुत ही लिमिटेड वैरायटी थी फूड की. तो मम्मा ने मैम अगर ये ना बनाना खाना सीख जाए, क्यों, मान लो हम कहीं घूमने भी जाते हैं ना, आई कैन स्टिल कैरी. बनाना इज वेरी हैंडी. हेल्दी भी है, एक खा भी लिया और ले जा सकती हूँ. बाहर का फूड मुश्किल है, तो एक फंक्शनल गोल भी हो जाता है ना. वी आर नॉट सेइंग अभी वो सारे ही खाना खा लेगा. हालांकि वी विल डिसाइड थेरेप्यूटिकली कि व्हाट इज पॉसिबल फॉर दिस चाइल्ड.
बट मुझे लगता है कि यस, इफ दे आर गोइंग आउट दे शुड बी एबल टू लीड बर्थडे पार्टीज में। सोशली बहुत हमारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं स्कूल पार्टीज में, यस मैं यस। फीडिंग इश्यूज। सो एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं अपना दूसरा क्वेश्चन ऐड या करूंगा। श्योर। हंगर बट Sorry, I think I'm not able to get you. Can you repeat the question again? my child feel hunger but don't eat everything. What should I do to initiate eating everything? I think she want to eat everything. देखो पहले तो आई वुड से आई विल नॉट गो एवरीथिंग इज अ लॉट राइट। Yes, पहले तो हमें yes. ना एक लिस्ट बनानी है। इससे यानी पर्टिकुलर टेक्सचर्स चाइल्ड इज नॉट ईटिंग, है ना। तो हमें पहले एक अगर फेवरेट्स की लिस्ट पता चल जाए और एक नॉन लाइक आइटम की। कई बार रूटीन से ये भी होता है ना कि एनी न्यू थिंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड। अगर हम सेंसरी एस्पेक्ट भी हटा दें, आप चिल्ड्रन लव प्रेडिक्टेबिलिटी, Yes. especially children with autism, right? So any new food, like I would tell you my experience, like I was very excited, I will try Turkish food. Okay? Yes. So my Genji's nephews wanted ki, Masi, you should try different. I was so anxious to try that Yes. food, right? So, or you need a lot of reassurance. तो ऐसा नहीं है कि I had some sensory challenge. I have never experienced that, है ना? So novelty factor वो है. भी समझना है कि हमें हर चीज टारगेट नहीं करना है। पहले तो समझना है कि इशू क्या है, व्हाई चाइल्ड इज नॉट ईटिंग एवरीथिंग, है ना। So ऑटिज्म में तो कोई भी नोवेलिटी फैक्टर तो हमेशा बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ नया फूड है ना, आप अपनी प्लेट में लगा के रख लो, राइट। जो आप उसे खिलाना चाहते हो, डोंट फोर्स द चाइल्ड कि वो खाए, ठीक है, बट ही कैन सी दैट फूड इन योर प्लेट, है ना। ही कैन हेल्प यू ईट, मम्मा को खिला दो एक बाइट। तो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर भी दे रहे हो फूड का। यस। सो बेसिकली बहुत सारे कंडीशनिंग है इसमें। हाँ, कंडीशनिंग है बिल्कुल। तो न्यू फूड को लेके तो मतलब मुझे लगता है कि ये रीजन भी बहुत होता है कि रैंडमली हम कुछ दे देंगे, उसका सेंसरी एक्सपीरियंस कैसा है उससे पहले ही वी हैव टू प्रिपेयर द चाइल्ड एंड अडेप्टेशन दे पाएंगे। सो ऑलरेडी इसका आंसर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन इज, डज फोर्स फीडिंग इंप्रूव फीडिंग इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म? इट कैन नॉट इम्प्रूव फॉर एनीबॉडी फोर्स फीडिंग। फोर्स फीडिंग से क्या होगा ना, एंजाइटीज और बढ़ जाएंगी, रिफ्यूजल बढ़ जाएगा, है ना। फोर्स फीडिंग के बाद बहुत बार आपको गैग और वॉमिट्स दिखेंगे इफ यू आर फोर्स फीडिंग द चाइल्ड। मैंने कुछ बच्चे ये भी देखे कि उन्होंने देखा कि जब तक वो वॉमिट नहीं करते ना, तब तक पेरेंट्स आर फीलिंग कि इट्स ओके टू फोर्स फीड, एंड यू चिल्ड्रन दे लर्न दैट एज देयर सर्वाइवल मैकेनिज्म। हमारी गैग रिफ्लेक्स है तो इसीलिए ना। So what they do, they stimulate that. I was working with one child, and then they said, "Oh, it's a behavior. Child is vomiting, but he was force fed." तो उससे emotional brain पे मतलब it would affect a lot. Even if a child is hungry, his negative association with food will develop. So अगर force अगर food is अगर definitely अगर not the अगर option. अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में फोर्स किया गया है ना बच्चे को, उसको भूलने में उसको सालों लग जाता है। बिल्कुल। Like It's we very always difficult. talk so much about Yes. our limbic system and Yeah. emotional brain. And अगर आप देखो हमारे जो भी ये हैं like hunger center, thirst, these all are into our limbic areas and all, right? These are anyways into brain stem. तभी तो vomit और वो सब बहुत ज्यादा मिलेगा इमोशनल डिस्ट्रेस में। Anyways, due to their sensory processing issues, already they are overwhelmed with so much. Yeah. तो अगर आप फोर्स फीड करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ही। हाँ, good going till now. Third question is screen feeding acceptable if child is eating enough food? अच्छा, अगर अगर रेस्टोरेंट में गए और स्क्रीन दे दिया और घर पे स्क्रीन दे दिया, मतलब क्योंकि आई तो स्क्रीन आई हेट इट। यस बट ये मैं ये भी कह रही थी मतलब when you are मतलब ऑब्वियसली अ चाइल्ड हु इज अ पिकी ईटर, जो बिल्कुल नहीं खा पा रहा और स्क्रीन से खा ले रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जा रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रही पेरेंट्स को अब वो खा रहे हैं तो आप एक ही दिन अब्रप्टली सब बंद कर दो। ग्रेजुअली
but you know gradually you are going to reduce that. Okay, so how you Yes. can do, maybe आप उसको बीच में खिलाते हुए उसके साथ interaction रखो कि let one bite we will eat and then you on the screen, और Yes. intermittently उसे थोड़ा थोड़ा बंद करना शुरू करें. कुछ और चीजों में भी एंगेज कर सकते हैं, कुछ विजुअल शेड्यूल्स यूज कर सकते हैं. बिकॉज सी इफ अ चाइल्ड इज लुकिंग एट द स्क्रीन एंड ईटिंग, सो चाइल्ड इज नॉट प्रोसेसिंग द फूड इन द माउथ. तो क्या होगा, इफ अ चाइल्ड इज अ पिकी ईटर या टेक्सचर या टेस्ट सेंसिटिविटी है, जब आप दोबारा दोगे वो स्किल डेवलप ही नहीं हुआ ना. तो लॉन्ग टर्म में इट हैज मोर डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन हु हैज सेंसरी प्रोसेसिंग इशू. देखो टिपिकली भी बहुत सारे न्यूरो टिपिकल चिल्ड्रन हैं हु आर ईटिंग विद स्क्रीन, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई स्क्रीन नहीं है, दे वुड बी एबल टू लर्न. बट अ चाइल्ड हु हैज सेंसरी इश्यूज मे नॉट हैव दैट स्किल, उसने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया, तब वो हटाना ज्यादा मुश्किल है. अच्छा. आई वुड सजेस्ट धीरे धीरे धीरे, मतलब 1 से 10 के बीच अगर ग्रेड है ना, तो उसको आप एक एक टाइनी स्टेप लेके किसी भी तरीके से एंगेज करके कम करना जरूर शुरू करो. अच्छा. And once you can go without screen, that let me tell you, parents, it's the best thing. Best time of interaction with the child. The feeding. हाँ, देखो हम कितने बिजी है ना पूरा दिन, पेरेंट्स आर वर्किंग, तो दैट टाइम व्हेन यू आर फीडिंग, कई बार हम उनको बोल रहे हैं कि वो देखो हाउ इज द टेस्ट, वाओ इट्स यम्मी, और द कलर ऑफ बनाना, मींस यू आर टॉकिंग अ लॉट, राइट. इंटरेक्शन का भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है मुझे तो लगता है. अगर अगर मदर पर्सपेक्टिव से सोचे, somebody has twins, right? या triplets. हाँ, या We can assume कितना डिफिकल्टी है. बिल्कुल बिल्कुल. बट मुझे लगता है फिर भी कुछ फीडिंग को एक फन तो बनाया जाए, कुछ टेबल एटिकेट शुरू करें, हाई चेयर्स दे सकते हो. मतलब कई बार हम देखते हैं ना, चिल्ड्रन आर मूविंग एंड ईटिंग, तो हमेशा बोलती हूँ, मतलब मैं तो मतलब आई कैन डॉल एंड आई लव दैट कि एक ना चेयर, एक पोस्चर इज सो इम्पोर्टेंट. तो आप उनको एक चेयर दे दो, हाई चेयर दे दो, राइट, सो दैट चाइल्ड इज सिटिंग एंड ईटिंग at least for few minutes, or start with very briefly, but वो important है मुझे लगता है. तो आई अग्री के साथ, वो चैलेंज है, बट हमें कहीं ना कहीं क्रिएटिव होना होगा. आई नो स्क्रीन इज द मोस्ट इजी वे, बट इजी वे इज नॉट द ऑलवेज राइट वे. Correct. Next question is food selectivity only a stubborn behavior? You said कि behavior सबसे last में consider करते हैं. हाँ, right. तो see, when a child is selective to food, there could be many times sensory processing issues. It could be issue with the texture of the food. It could be taste. It could be smell, and it could be even the color. Like I remember one of our child did not like few foods because of color. ये sensory sensitivities हो सकती है किसी भी एरिया की. That could be the reason, right? Stubborn behavior बनता कैसे? What is behavior? Something which is comfortable for me, I will eat. Which I doesn't like, I will not do that, right? Yeah. That makes your behavior is a repetition of something which you're doing. So if a child has selectivity, maybe it turns to behavior also. कि I will cry, I will throw a tantrum. But उसके अंदर अगर हम underneath ढूंढेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा कोई रीजन. एवरी बिहेवियर शुड टेल अस समथिंग. व्हाई चाइल्ड विल नॉट ईट, व्हाई ही वुड चूज ओनली, क्यों उसे एक ही चीज खानी है. देयर हैज टू सम रीजन, राइट. सो अगर जो ऑटिस्टिक एट्रीब्यूट्स है कि रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट अक्रॉस द डोमेन इंक्लूडिंग फूड्स, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? वो प्ले करता है, वो आई वुड से कुछ हद तक करता है. वो डिपेंड करता है हमने एक्सपोजर कितना दिया है. तो जैसे वन ऑफ आवर चाइल्ड हैव बीन टू ओनली वन टाइप ऑफ पार्क ना, एक ही झूले पे जा रहा है, अब वो फिक्स्ड हो गया बिकॉज नाउ ही इज कंफर्टेबल. एक लिफ्ट में आई एम ओके, बट इफ आई गो टू सम प्लेस आई एम नॉट. सो एक्सपोजर अगर हमने यंग एज में एक्सपोजर फूड कम दिया, नॉट ओनली बाय फीडिंग द चाइल्ड बट इवन इन विजन, हाउ ही इज लुकिंग एट अदर्स ईटिंग, तो वो भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है. बट डेफिनेटली उसके साथ साथ सेंसरी को भी हम देख सकते हैं, दोनों चीजें, बट इट डज कंट्रीब्यूट. सो
अगर स्टैटिकली देखें जो रूरल एरियाज है, ठीक है, और जो अर्बन एरियाज है, उसमें कुछ स्टैट कहता है कि उधर कम इश्यूज हैं, इधर ज्यादा इश्यूज हैं, इधर ज्यादा इश्यूज है, उधर कम इश्यूज हैं? मैंने वैसे सैट नहीं सर्च किया. आई थिंक यू आर अ हाँ, वेरी नाइस पर्सन टू टेल मी. मीन्स आई हाँ, यू डू लॉट ऑफ रिसर्च. बट समहाउ अगर मैं बड़ी छोटी रिसर्च, तो आई वोंट से, आई एम जस्ट से वेरी क्लोज टू नहीं नहीं, ग्रुप ऑफ आप तो रेफरल पीपल. जनरेट करते होगे तो उधर से हाँ, आते होंगे तो क्वेरीज। उस रेफरेंस में मैंने जो देखा है, वन, कई बार व्हेन वी आर फीडिंग द चाइल्ड वेरी फास्ट ना, कई बार क्या होता है कि यंग एज में जब खिचड़ी है, दलिया है, खिलाना बहुत इजी है, एंड व्हेन इट कम्स टू चूइंग इट टेक्स टाइम. तो कई बार व्हेन वी आर वेरी बिजी, है ना, जैसे इन अर्बन एरियाज न्यूक्लियर फैमिलीज है, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है, मतलब साथ में, वी ऑल आर वेरी न्यूक्लियर नाउ, राइट. बहुत कजन से मिलना नहीं हो रहा, चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज टू मेनी सोशल सेटिंग्स. तो कहीं ना कहीं आई डू फील maybe एक ए, little more issues that. हालांकि एक सूर्यान सोटी है, उनका एक्सेप्ट कर लें, हम इनको इनवाइट करें? yes, अच्छा, you need to love to. अच्छा, इनसे पूछते हैं क्या इश्यूज है। Yeah. ज्वाइन अभी तक आया नहीं उनका। चलो, हाँ, ठीक है. एक 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 और क्वेश्चन है। जब पेरेंट्स से बात होती है ना, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केस में हमने देखा है फूड, ये फ्रूट्स एवर्सिव होते हैं, बच्चे फ्रूट्स खाते ही नहीं। और एक बच्चा मैंने देखा है अदर वे अराउंड, सिर्फ फ्रूट ही खाता है। फ्रूट ही खाता है या ये सो एक्चुअली आप सो सही इट्स कह रहे हो. बिल्कुल दो तरह के हम केसेस देखते हैं. या one child who loves fruits, true, yeah, but doesn't like the cooked food. इसमें ना मिक्स टेक्सचर्स हो जाते हैं. यस। जैसे इंडियन फूड में वैसे ही बहुत मिक्स्ड फूड्स है. इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, तो आई फेल्ट कि हमारे जो करीज हैं या टेबल फूड्स है, इट हैज लॉट ऑफ different textures. Then we are putting some jeera in that, या अनियन स्लाइसेस हैं. तो कई बार तो ये भी होता है जो कुक्ड फूड है उसमें कई बार मिक्स्ड ऑफ टेक्सचर्स हैं, कुछ लम्प्स आ गए या वो. रॉ फूड में अगर बच्चे की स्मेल सेंसिटिविटी ज्यादा है या टेक्सचर मुशी वाली ज्यादा है, तो कई बार वो फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं. तो मैंने कहा ना, सिलेक्टिविटी, जो हमारा टैक्टाइल सिस्टम है ना, डिस्क्रिमिनेशन इज लाइक, आप ये सोचो, बनाना एंड चीकू बोथ आर मुशी, राइट, बट अगेन द टेक्सचर कैन नॉट बी सेम फॉर बोथ. या तो our tongue has so much receptors to feel कि आप जब चीकू खा रहे हो, विच इज अगेन सॉफ्ट एंड स्वीट, एंड व्हेन यू आर ईटिंग बनाना, बट दोनों के टेक्सचर में आपको हल्का सा दरदरापन मिलेगा, एंड योर टंग कैन डिफरेंशिएट दैट. सो इफ अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टीज विद दैट, डेफिनेटली हमारे बच्चों में इसको कई बार ना हम सिलेक्टिव टैक्टाइल डिफेंसिवनेस बोल देते हैं, क्योंकि बच्चे सारी चीजों से नहीं है बट एक दो टेक्सचर से डिफेंसिव है. देन यू आर डूइंग मोर ऑफ एक्सपोजर एंड अडेप्टेशन टू दैट पर्टिकुलर टेक्सचर ऑफ द फूड. और जो स्कूल के मील टाइम होते हैं, आप लोग इनकरेज करोगे कि स्कूल के ही मेस से लिया जाए या घर से लिया जाए? क्या क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है? मुझे तो लगता है दोनों ठीक है. मतलब अच्छा। मतलब मेरे अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं. लाइक वन ऑफ द चाइल्ड हु हैड मेजर फीडिंग इश्यूज, and somehow when they started the school thing, हालांकि उसका अपना टिफिन, हम literally we wrote a letter to the school, मतलब with the recommendation from therapist कि child should be able to carry the food, otherwise they don't allow with every child. तो हमने वो दे दिया. बच्चे को ऑप्शन उसके होम कुक फूड की भी दो, बट स्टिल जैसे मैंने बोला ना, एक्सपोजर, तो स्टिल गिव दैट, बिकॉज मेनी अ टाइम्स आवर चिल्ड्रन दे सरप्राइज अस कि कई बार वो ट्राई कर लेते हैं. उसने इडली ट्राई किया एंड ममा वाज लाइक, ओह ही एट इडली इन द स्कूल, आई कैन नॉट बिलीव दैट. आई कैन नॉट बिलीव बट एग्जैक्टली। मे वो बाकी बच्चों के साथ तो समथिंग क्लिक्ड एंड ही ट्राइड, ही वाज रेगुलेटेड, ही वाज एक्साइटेड, इट वर्क. तो मुझे लगता है किसी भी एक्सपोजर से तो पीछे नहीं करें, बट चाइल्ड शुड हैव हिज सेफ फूड ऑलवेज. जैसे अगर हमने सारा ही नया फूड स्कूल वाला दे दिया और बच्चा नहीं खा रहा है, तो पेरेंट यू आर ऑल्सो एंशियस. फिर हमने वो बंद कर दिया और फिर हमने घर का फूड भेजना शुरू कर दिया. तो आई से लेट्स फॉलो द मिक्स्ड अप्रोच, let him be exposed to that and give him options. My next question is, does feeding therapy only mean teaching chewing? नहीं, मैंने देखो अभी तक आई थिंक हमें 27 मिनट्स हो गए, वी डिड नॉट स्पीक अबाउट चूइंग. नाउ Yes.
तो यस, तो एक बार सेंसरी प्रोसेसिंग हो गई, फूड का फ्लेवर हो गया, अब ऑब्वियसली ओरल सिस्टम का, मोटर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, बट खाली वो नहीं है। मतलब अगर जैसे मैंने कहा हम 1 घंटा अगर बात करें तो 15 मिनट 30 मिनट वो कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू बाइट। पहले हमने फूड को जो भी उस जिस फॉर्म में उस फॉर्म को ब्रेक किया सो दैट इट कैन बी मैनेज। फिर हमारे जॉ का टंग का तो रोल आ गया टू मूव द फूड। जैसे ही मैंने खाना लिया, देखो सबसे पहले मैंने अपने फ्रंट टीथ यूज किए। विद इन सेकेंड माई फूड है मूव हियर। मैंने फील किया तो ही, अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो यहीं से वॉमिट कर दूंगा। अब मैंने उसको मोलर्स के अंदर लिया, आई एम चूइंग, हर चू के बाद मुझे सेंसरी फीडबैक मिल रहा है कि ये अभी निकलने लायक हुआ है कि नहीं। राइट, एंड दैट्स सेंसरी एंड मोटर सिस्टम आर सो कंबाइंड। पढ़ते हम अलग अलग हैं बट यू कांट सेपरेट दैट। करेक्ट। नाउ व्हेन यू आर चूइंग इट, अब आपको लगा इट इज सेफ टू स्वेलो, यू आर डूइंग दैट। तो यस, कुछ बच्चे जो सेमी सॉलिड्स पे हैं या लिक्विड्स पे हैं, दे मे हैव लॉट ऑफ वीकनेस, टंग का उनका लेटरलाइजेशन नहीं है या जॉ मूवमेंट्स डेवलप नहीं है। बट आई वुड से ऐसा बहुत रेयर होता है, लाइक इन सेरिब्रल पॉलिसी, डाउन सिंड्रोम, ऐसी सिचुएशंस में तो कई बार देयर इज अ प्योर ओरोमोटर इशू। बट इन ASDs, इवन इन दैट चिल्ड्रन ऑल्सो आई वुड से सेंसरी मोटर दोनों का पर्पस है, दोनों का रोल है। One question is coming. We have one ADHD child Okay. who only have milk with milk bottle. How to deal with it? Bottle feeding, yes. मतलब I actually made a complete video on that because bottle feeding बंद होना है जल्दी। मतलब इतने ज्यादा रीजंस हैं why we don't need bottle feed। तो मतलब even the sucking movement with the bottle nipple ना, that is a सबसे primitive movement, jaw movements develop ही नहीं होंगे। It brings the palate up. So again हमें धीरे धीरे एक्सपोजर, अगर बच्चा दिन में कितनी बार मिल्क ले रहा है, पहले मेरा ये टारगेट है। अगर दिन में वो 2 बार ले रहा है, रात में 1 बार, तो मैं सबसे पहले रात वाला बंद नहीं करूंगी। क्यों? अब रात में वो सोएगा नहीं, चाइल्ड इज क्राइंग, यू आर मोस्ट डिस्ट्रेस्ड एट नाइट, सो नाइट वाले को सबसे बाद में काम करोगे आप। बट डे टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि उसके फूड में और क्या क्या चीजें, राइट। इफ चाइल्ड इज ईटिंग मोर एंड अदर थिंग्स, क्योंकि मैं ये अज्यूम करूंगी कि जब मैं बॉटल फीड से शिफ्ट करूंगी, हो सकता है मिल्क इनटेक कम हो जाए। अगर एक बच्चा सिर्फ ही दूध पी रहा है और मैंने एकदम से बंद किया, नाउ आप 1 हफ्ते बाद 4 दिन बाद खुद ही शुरू कर दोगे, बिकॉज कुछ तो जाना है। तो पहले तो आई हैव टू मेक, वो कहते हैं ना आपको एक और सेना तैयार करनी है, वो और क्या क्या खा सकता है। इफ दिस चाइल्ड हैज वैरायटी ऑफ फूड, आई एम हैप्पी। शुरू में आप डे वाला बंद करो, ओरल मोटर स्किल्स डेवलप करो, और फिर कुछ सिपी कप्स ला दो, ओपन कप या स्ट्रॉ, इससे शुरू करो। अगर 5-6 ईयर्स है स्टिल बॉटल फीड है, तो मैं बोलती हूँ बंद कर दो कैसे भी, नहीं भी मिल पिएगा ना। मतलब आई एम बीइंग वेरी लेम हियर, बट यस, स्टिल डोंट यूज इट, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली डील्स दैट। ये थोड़ा सा जेनरिक क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट लाइव के लिए रखेंगे। व्हाई सेंसरी सेंसिटिविटी इज सो हायर इन द टुडे चिल्ड्रन, व्हाट आर द रीजन? I feel exploration. You feel how much we are, see our children are they are using their visual system maximum, right? 18 months से पहले they are on screen, but their tactile system is not well developed. हम बच्चों को crawl तक नहीं करने दे रहे हैं। I remember like we had the houses where we had mud, बहुत सारे household चीजें होते थे। Now the whole environment, obviously we are more hygiene conscious, I feel, and we don't want our children to be messy. So somehow their tactile exploration is less in many other forms. फूड में भी we feel कि ना वो क्लीन जल्दी से स्पून से खाए या फोक से खाए। So they do and let them eat with their hand initially. So do you think इसमें parenting का इश्यूज है कि थोड़ा let go करना चाहिए? हाँ, मतलब मुझे लगता है हम आज के इरा में ना we all are very anxious. Yeah, फर्स्ट चाइल्ड में तो खासकर। हाँ, और फिर वर्क भी है, फर्स्ट बेबी है, चाइल्ड इज क्राइंग और नहीं एक्सेप्ट कर रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंसेस। बट मुझे लगता है या मीन्स give your child, play with them, it's okay if they will be messy. मतलब I remember with one of our child, she was having Down syndrome, severe feeding issue,
हम्म, एंड somehow she loved the feel of noodles. और मैंने पूरी सेशन में उसके साथ नूडल्स में हमने कलर्स डाले, फूड कलर्स, एंड वी प्लेड विद दैट, एंड शी पिक्ड एंड जस्ट टच्ड हियर. My purpose was done in one session, बस यस, इतना. डन She हो गया accepted उसको. the food. Yeah. Because any food she would see now, she would vomit. हाँ, So I feel food exploration, any food, even sometimes I only tell कि आप ना cucumber और tomato wash करने को ही दे दो, still they are touching the food. yeah. That also helps. So one more question: how to make the child have fruits and dry fruits? सो देखो बहुत वेग है, हर फ्रूट जैसे मैंने बताया अलग है. एप्पल थोड़ा चूई ज्यादा है, चू करना है आपको, है ना. गुआवा हो हम्म, गया. तो वन हम्म, डेफिनेटली हाउ यू आर मूविंग विद द एज ऑफ द चाइल्ड. बहुत यंग हम्म, बच्चे हैं, यू आर इवन बॉइलिंग, गोइंग टू बॉयल एंड गिव देम इफ दे आर एन. अब टू हम्म, ईयर्स पे बच्चा चू कर सकता है. स्टार्ट विद द स्मॉल क्वांटिटी, हम्म, right? Even if you're starting with banana and apple, and see हम्म, their response. हम्म, वीक में, मतलब मैं ये नहीं चाहती रोज एक नया फल ट्राई करो. ठीक है. ड्राई फ्रूट्स आर अगेन नीड्स अ लॉट ऑफ चूइंग, है ना. राइट. तो तो जिनको ड्राई. जिनको पर्सनल एडवाइस चाहिए उसको क्या करना होगा आपसे? हाउ यू कैन कनेक्ट मी, हाउ कैन यू कनेक्ट मी, टेल मी. आई कैन जस्ट सेंड द नंबर. या या सो आई एम क्या? बेस्ड इन नोएडा, टिकल्स के यस, नाम से यस. मिल जाऊंगी मैं इंस्टा पे भी वैसे तो. हाँ, या हाँ. बट यस आई थिंक, या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी विल सी हाउ, और सिमन कैन सेंड, या यस, क्योंकि क्योंकि पर्सनली डाल कि सेकंड मैं राइट. बहुत ही अप्रेंसिव होता हूँ ना किसी को वो करने में, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता. I can understand totally. Yeah, so I have a, full confidence. Okay, thank you. So we quickly wind up in the 5 minutes, okay? Yeah, sure. Does a child need to tolerate food first before they can eat? Yes, yes. As we talked, sensory, they Hmm, have to tolerate the food. Very hmm, important. Otherwise, Sara, refusal, avoidance. You know, in sensory, we have a very terminology, right? hmm. Tactile, the hypersensitivity or defensiveness. Yes. Defensiveness is you have not, he had negative experience with the food, and Oh, second time even by the looking at the food or the smell of food, child is vomiting, oh, and you are saying, oh, this is a behavior क्योंकि मुंह में तो डाला ही नहीं है. yep. So if a child has not accepted the food, the second time response could be even more severe or Oh, worse, oh, right? So that's why even in the first session, even if he has just accepted the food in his plate, और oh, कई बार हम उनको बोलते हैं कि अच्छा जस्ट ना वी विल डू अ किस, ब्लो अ किस, oh. दैट्स इट, क्योंकि लिप पे टच हो गया. एंड कई बार मुशी लाइक बनाना सीजन था एंड वी ट्राइड विद दैट चाइल्ड, हमने क्या किया, उसे आइसक्रीम स्टिक में लगा के ऐसे दे दिया, एंड वी सेड इट्स लाइक योर कैंडी एंड कैन यू जस्ट लिक और टच. So Wow. acceptance aa gaya, and after few sessions, child was okay to take the very small bite of mango. So in that way, I will feel tolerance is for us, for anybody. If अगर you're not अगर able to tolerate, so अगर we अगर will अगर find सेशन it. अगर सेशन में ऐसा कुछ होता है तो बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, राइट? Oh yes, even one itna हाँ. sa bite of mango, it feel achievement for us. यस. हम लोग 2-3 दिन क्लाउड नाइन पे रहते हैं. एक्चुअली वो हमारे नहीं. लिए, वो कहते हैं ना, वाव मोमेंट्स होते हैं ऐसे. यस, यस. हैव मेनी सच मोमेंट्स एंड सो हैप्पी मोमेंट्स. और क्वेश्चन इज मैम, यदि बच्चा पोटैटो ज्यादा पसंद करता है और हर सब्जी में, तो हमको देना चाहिए? आई थिंक इट्स. ये मुझे लगता है डाइटिशियन रिलेटेड भी है. यस, 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 लेकिन यस. पोटैटो ठीक है, किसी दिन स्वीट पोटैटो दे दो. स्वीट पोटैटो इज वेरी हेल्दी, राइट. तो फिर भी कोशिश करो, जैसे मैंने कहा ना, नई, ऐसा नहीं है कि नए फूड ट्राई नहीं करना है, स्लोली उसी के टेक्सचर से रिलेटेड थोड़े थोड़े ट्राई करना शुरू कर दो. सो एक प्रोफेशनल का मैसेज है: इज देयर एनी ट्रेनिंग विच यू गिविंग अस फॉर ओटी? सॉरी, ओटी. यस, ओटी को आप ट्रेनिंग देते हो फीडिंग के लिए? मैं सबको ट्रेनिंग देती हूँ जो भी लेना चाहे. इफ इट बी या पेरेंट, मतलब मैं यस. ज्यादा बहुत पेरेंट ट्रेनिंग्स में बिलीव करती हूँ, बिकॉज आई फील फीडिंग फीडिंग एंड टॉयलेट ट्रेनिंग हम पेरेंट को गाइड करते हैं, एंड दे हैव टू डू इट अ लॉट एट होम, राइट. बच्चा सबसे ज्यादा लाइक ही हैज टू बी फेड एट होम और स्कूल, यस, राइट. बट यस. वी डू ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल, आई थिंक. Okay, I haven't done the webinar now, but in the lockdown, I think we had a full training session on feeding issues, and hopefully we will do that.
again. हाँ. So that's it. Yes, I think it's so wonderful. Time मतलब मुझे पता ही नहीं चला. Like we can talk like hours on feeding. I Yes, think. yes. Yeah. So can we summarize this? So Okay. So to do you want to summarize or you no, want you to? please go Okay. ahead. So I think Only five takeaway. That's it. okay, 5 takeaways. Uh, Definitely don't force feed your child. बिल्कुल Right. नहीं है ना. And if Hmm. a child is not eating, the last thing you are going to think is a behavior बिगड़ा हुआ है, tantrum है, stubborn है. I don't Hmm. like these words because many times our children are struggling. Believe Hmm. me. ठीक है, Hmm. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिहेवियर को सबसे बाद में सोचना आप लोग. ठीक है. Hmm. स्क्रीन धीरे धीरे कम करो. Hmm. ग्रेजुअल. Everything has to happen gradual. Ah. Food exploration, my favorite thing to do. ठीक है. इफ योर चाइल्ड इज वेरी यंग तब भी करो. बड़ा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग हाई लेवल एक्टिविटीज कर दो. इवन इफ इज डूइंग समथिंग बिगर थिंग्स विद द फूड, डू दैट. 5वां, क्या सोचे. और Connect with हाँ, फाइंड connect. प्रोफेशनल हेल्प इफ योर चाइल्ड Yes. इज स्ट्रगलिंग. बिकॉज कई बार होता है कि सी यू मैम स्टिल किसको नीड अ किसको प्रोफेशनल. किसको अप्रोच करें? देखो ओपीटी. मुझे लगता है ओपीटी. फीडिंग में ना मैंने ये हाँ. देखा है कि इट इज वेरी वेग राइट. यू नो ऐसे when I'm a हाँ. kid, but I found a lot of interest in oromotor. And हाँ. then I went for this training because I saw our children are struggling. Many हम्म. OTs are trained in sensory हम्म. integration. हम्म. जरूरी भी नहीं है कि ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में भी इंटीग्रेट मतलब हुई ही सर्टिफाइड. बट ओपीटी डज हेल्प. हम्म. Speech therapist मतलब it's very sad. I know very few speech people in हम्म. North India. Maybe मतलब I know many who are doing on feeding, but फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, these are the professionals who can हम्म. work on oral sensory and oral motor part. थैंक यू सो मच मैम. आपको फिर से पकड़ेंगे कभी नेक्स्ट Yes, टॉपिक it's में. so lovely, and I hope it was helpful. यस, And we यस. will love to connect for much more. एंड मैम को कनेक्ट करो अगर फीडिंग रिलेटेड. Sure, I will love to help. Yeah. थैंक यू मैम. Thank बाय. you so much. Bye bye. Bye बाय. everyone. बाय. Bye. बाय.